So we are starting some solving. We will solve some questions today about on this chapter, body fluids and circulation. Let us see what are the components or what is the syllabus for uh, of this chapter for NEET. So we see that following things are there: composition of blood. Okay, what is blood made up of? Then blood made up of, in that we saw that plasma, and there are some formed elements in which we have seen RBCs, WBCs, platelets, and other cells. Then blood groups, blood grouping we have seen. In that we have seen A, B, O blood group system. Then we have also seen RH factor, correct? Then composition of lymph and its function. Okay, we have detailed seen what is lymph made up of, what does lymph have. Then human circulatory system, that we have seen. In that, structure of human heart and blood vessels, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity with the help of medulla oblongata. Okay. Then adrenal gland also is there, regulation in regulation. Disorders of circulatory system, in that we have seen hypertension, coronary artery disease, angina pectoris, and heart failure. This is what is there in whole chapter. Okay, and we have gone through all the topics in detail. Okay, so now if we analyze past few years, what was the, what is a subtopic level analysis we call it. So approximately two questions are asked every year on this chapter. Okay, two questions. So what are the topics, subtopics? So in 2018 we'll see blood and lymph or circulatory pathway. On this question was there. NEET 2017, blood and blood circulation. Again, circulatory pathways, blood cell, and some one question was on regulation of cardiac activity, how the cardiac activity is regulated. So the, you can understand from this that the initial part of the chapter, which was related to blood, plasma, blood cells, that was very important. As such, everything is important, but questions were more asked on that topic. Okay, so should we go ahead with the questions? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. So what I will do is I will display one question each, and then I will give you time for some seconds or minute or so, and you have to answer, and then I will explain if needed. Hmm. So this is the first question. Read it properly and write answer in the chat box to me privately. Don't write in open, common. Okay, one answer I got till now. Oh, sorry. Are you able to see the question even now? No, sir. No, sir. Sorry. कुछ लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है. It is not that difficult. Okay.
ठीक है. Who is most confident can answer. What is the answer? Third option. Yes, answer is third option. So see, tricuspid valve. Tricuspid valve कहाँ पर है? तो tricuspid valve is between right atrium and right ventricle. Right atrium and right. हाँ, so क्लियर है, उसमें कुछ डाउट नहीं है. और बाइकस्पिड वेल्व अपोजिट में है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में. सो लास्ट में फिर बचा सेमिलुनर वेल्व्स, जो कहाँ पर है? इट इज बिटवीन द Right ventricle and pulmonary artery. आर्टरी. यस, सो वो भी सेमिलुनर, एवर्टा का भी है और ये भी है, दोनों को सेमिलुनर वेल्व्स बोलते हैं. सो इन दिस केस यस, सो आप ऐसे कर सकते हैं ना, लाइक दिस यू कैन डू. So the option third is correct. Okay, is it clear for everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second question. Write the answer in chat box. बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे? दो ही लोग आंसर, दो चार तीन लोग ही आंसर दे रहे. एक ही आंसर दो, डबल डबल आंसर मत दो. So answer is, who can tell confidently? Fourth one, intestine. Fourth one, sir. Yes, fourth one, that is intestine. So hepatic portal vein हमने देखा था, we have seen this. If you want I can show here also, it is there. This, are you able to see this? दिख रहा है? ये hepatic portal system दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay. No, sir. Now, Yes, sir. yes. So here we, in this hepatic portal system, we can see that we have discussed that hepatic portal system, it is the transfer of nutrients from one organ to another organ. ठीक है? Without, through blood without involvement of heart. Heart कहीं पर है? एक organ से दूसरे organ में जा रहे substances with through blood. ठीक है? So hepatic portal system, hepatic word काय के लिए यूज करते? तो it is used for liver. ठीक है? So is that which
carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. उसको बाद में सिस्टेमिक को डालने के पहले ये दोनों एक दूसरे का इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay. So we need to go a little fast. Okay, this is the your next question. Yes. See, you read. One should read question nicely first of all. सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए properly, slowly, and then immediately answers को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए. नहीं तो कुछ लोग फटाफट आंसर कर देते बिना सोचे. Okay. So what is the answer? सबका आंसर है 4. Okay, it is correct. ठीक है. So platelets. Anybody has any doubt about this? इसमें कुछ कम ज़्यादा है क्या? नहीं. नहीं ना? No. हाँ, it is very simple question. So platelets का फंक्शन ही है क्लॉटिंग. अगर कम हो गए तो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगा. कृष्णा. Sorry. Leading to excessive loss of blood from the body. That is thrombocytes. Thrombocyte यानी platelets. हाँ, ये याद रखना. ये किसी को अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर सोच के दो थोड़ा सा. दो टर्म्स को, दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन है ये. Yes, some are answering quickly, some are taking time. This is your first time, इसलिए मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ. आगे फिर इतना टाइम नहीं दूंगा आपको. Okay. Sir, I'm not unable to see the screen. You are not able to see? Okay. Now, visible? अभी है क्या visible? Yes, sir. बताओ जल्दी आंसर क्या है? Who can tell? Third option. Third option. Yes, third option. Because serum का definition ही वो है कि plasma without Clotting Clotting factor. factor It is is called called yes, plasma without clotting factor is called as serum. So that is the answer. Very good. ये ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है बोलो? ग्लोबुलिन का ये स्पेलिंग गलत है. ग्लोबुलिन्स का फंक्शन याद है किसी को? भूल गए. मैंने आपको 4-5 बार बोला था यार. हाँ acts as antibodies. हाँ, एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन्स. करेक्ट, वेरी गुड. सो इम्यून सिस्टम में फंक्शन करते हैं. अल्ब्यूमिन्स का क्या है? Osmotic balance. हाँ, ऑस्मोटिक बैलेंस. एंड देन लैकिंग एंटीबॉडीज, दैट इज
एंटीबॉडीज, ठीक है, वो तो हो गया। नेक्स्ट, सीरम में तो एंटीबॉडीज रहते हैं ज्यादा, ठीक है। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। Only one? Only two? So answer is, anybody confident? Third option. Yes, it is Third. correct. It is third option. Why? सी तो ब्लड प्रेशर कैसा होता है अगर हम देखें, एक मिनट। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर यू आर एबल टू सी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ब्लड प्रेशर ये नोट कर लो, सबसे कम ब्लड प्रेशर किधर है? तो वेना कैवा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो देखो कहाँ से हार्ट है, हार्ट से एओर्टा जा रहा है, एओर्टा फिर जाके डिवाइड होता है ना आर्टेरियोल्स में, वो आर्टेरियल और ज़्यादा कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, फिर ये कैपिलरीज टिश्यूज के पास आते हैं, टिश्यूज इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड डालते हैं, और फिर यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाले टिश्यूज काय में कन्वर्ट होते हैं? तो वेन्यूल में, वेन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये वेन्यूल सब लोग मिलके वेन बनाते हैं, और ये वेन आती है यहाँ पे, तो वेना कैवा, द वेन which is coming is called vena cava, coming back to heart, this is heart। so ये artery, arterioles, फिर कैपिलरी, और फिर ये यहाँ पे आ गया वेन्यूल। सो हार्ट जहाँ पंप करता है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेशर गोज ऑन रिड्यूसिंग व्हेन वी गो फ्रॉम हियर टू हियर। समझा क्या? Yes, sir. समझे? सबको समझा क्या? नहीं? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यस और नो? No, sir. नो नीड ना, ठीक है। प्रेशर कम होता रहता है ना, प्रेशर कम होगा, जैसे हार्ट ने जहां से पंप किया वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर है बताएगा कोई मुझे? इन दिस डायग्राम वेयर इज हाईएस्ट प्रेशर? Artery. आर्टरी और एओर्टा हम बोलेंगे, ठीक है। दिस इज आर्टरी की जगह पे हम बोलेंगे एओर्टा। सबसे हाई प्रेशर किधर रहेगा? एओर्टा में, उसके बाद आर्टरी, जो भी बाकी आर्टरीज उससे निकलती है, फिर आर्टेरियोल्स। अब क्वेश्चन हम देखते हैं अगर क्या है क्वेश्चन में, तो देखो तो क्वेश्चन में क्या है, आंसर दिया सेम एज दैट ऑफ एओर्टा। अब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर एओर्टा जैसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड किधर से ला रही है? तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ से कहाँ लाती है बताओ?
लंग से लाती है लेफ्ट एट्रियम में, करेक्ट? या लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम से लेके जाते हैं लंग्स में, बताओ विच वन इज करेक्ट? Right ventricles to the lung. राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू सॉरी राइट करेक्ट राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल से ले जाती है लंग्स की तरफ, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, अभी लंग्स की तरफ ले जाती है। नाउ दिस पल्मोनरी आर्टरी, उसका प्रेशर एओर्टा जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि somebody said वन आंसर, जो भी पहले स्टूडेंट है वन को ही क्लिक करते हैं, क्योंकि क्या सोचते हैं कि चलो ये है हार्ट है, ठीक है, हार्ट में 4 चेम्बर्स है, तो हम बोलेंगे चलो इधर से जो निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और इधर से जो निकल रही है एओर्टा, दोनों का प्रेशर सेम चाहिए, मगर वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा थिक रहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के। और क्यों रहते थिक? बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में पंप करना है ब्लड को, इसलिए प्रेशर ज्यादा देते हैं। एओर्टा का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, so it is not same as aorta. More than that in carotid, हमें मालूम नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दिस कैरोटिड, है ना, पता नहीं है कैरोटिड के बारे में कितना प्रेशर है। जैसे हमने देखा ये एओर्टा निकलती है, एओर्टा से एक ब्रेन की तरफ जाता है जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ठीक है, ये पता नहीं मुझे पापा, बाद में देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन, जो पता कौन सा है वो देखना है। सो मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ज्यादा है क्या? तो देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था, यस पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग्स से लेके आती है हार्ट में, तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर जो है वो कम रहेगा, ठीक है, और ये पल्मोनरी जो आर्टरी यहाँ यहाँ से ले जा रही है लंग्स की तरफ, इसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कभी भी ज्यादा ही रहेगा। यू अग्री विद दिस पॉइंट? हो कि नहीं, कि चले गए, सो गया क्या? Yes, sir. बाकी लोग, others are not speaking. Abhishek, Yes, sir. Shravani, Yes, sir. हाँ, तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स से आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से जो जा रहा है वो हार्ट पंप कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन कभी भी करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन वेना कैवा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेना कैवा में तो सबसे कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो वेना कैवा से तो कम हो नहीं सकता। सो इफ I am going to solve this question, what I will do is, ठीक है, I will do question mark to this, I will do question mark to this point also, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना, एग्जैक्ट नहीं पता होता, ये पॉइंट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है हमें, ठीक है, तो दिस पॉइंट समझा, मुझे पता चल गया ये सही है, क्योंकि मुझे पता ये कंफर्म है ना कि लंग से जो हार्ट है, हार्ट से जो जा रहा है ब्लड वेसल और लंग से जो आ रहा है, ये दोनों में ज्यादा प्रेशर कौन से वेसल में रहेगा? तो जो हार्ट से जा रहा है, ये तो कंफर्म है मुझे। So I will immediately answer this question. I will not look for the fourth option also. मैं fourth option देखूंगा भी नहीं, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। लेकिन we should see also, fourth option देख लेना, less than that of वेना कैवा, ये भी देख लेना है कि वेना कैवा से कम है क्या, वो पॉसिबल नहीं है। So ये सब ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, है ना, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस सपोज, ठीक है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है बाबा, क्या है ये पता नहीं मुझे, ठीक है, कैरोटिड भी पता नहीं और एओर्टा जैसा है क्या प्रेशर वो भी पता नहीं, मुझे डाउट है। तो देन आई विल गिव आंसर 3। Is it okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move. Okay, which of the following statements is correct regarding blood pressure? बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
देखो अभी जहां पर हमें डाउट है, ठीक है, एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है, तो ऐसे टाइम पे वी शुड गो विथ विच ऑप्शन, सो जो ऑप्शन हमें आइडिया है पहले से, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है वैसे टाइप का ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो चलो टाइम हो गया, टाइम अप। बहुत टाइम ले रहे हैं, अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। व्हाट इज द नॉर्मल आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होता है, बोलो। व्हाट इज द आइडियल ब्लड प्रेशर? 120 by 80 mm of Hg. यस, ये है, दिस इज द आइडियल, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर कितना दिया हुआ है बुक में? 140/90. हाँ, 140/90, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो 140 से नीचे वाला नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। 120 से नीचे वाला नॉट एक्सेप्टेबल। 105 नॉट एक्सेप्टेबल, कम है ये, वेरी एक्टिव नहीं, गलत है ये। फिर लास्ट में बचता ये है, करेक्ट। अगर वैसा भी नहीं देखे हम लोग, इफ यू डोंट गो बाय दिस वे, वी विल रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? 190 इज टू 110, यानी 140 इज टू 90 के ऊपर रहा तो हाइपर टेंशन है, ब्लड ब्लड प्रेशर है, बढ़ गया तो हाइपर टेंशन है। जिसमें क्या होता है, एक एक करके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, मैंने आपको बोला भी था, अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है इट अफेक्ट्स ऑर्गन्स, सो इट मे हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो ये अफेक्ट करेगा ब्रेन और किडनी को, तो इट इज श्योर, इट इज करेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, 140 90 अफेक्ट करता है, उसके ऊपर है, तो देन इट इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी। 130 90 डेंजरस नहीं है, ठीक है, कंसिडर्ड हाई नहीं है। 140 हाई पकड़ा गया है, 130 नहीं, उसको नहीं अपन एक्सेप्ट करते, और ये दोनों तो देखने का काम नहीं। अंडरस्टूड? Yes, So, sir. ओके, Sir. नेक्स्ट। जस्ट थिंक एंड आंसर ना, अपने मन से कुछ भी मत करो, फटाफट गड़बड़ नहीं करना है, आराम से चलो अभी अपना फर्स्ट फर्स्ट सॉल्विंग है अपना। Okay, so anybody with confidence can answer. QRS. क्यों आ रहे नहीं, यानी 1 2 3 में कौन सा आंसर है? Third one. third one. यस करेक्ट, थर्ड वन। देखो पी वेव क्या सिग्निफाई करता है, पी वेव, तो हम बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन, करेक्ट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल सिस्टोल कब होता है, जब डीपोलराइज होता है तब।
सो पी वेव क्या है, ये करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, या हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन क्यू आर एस जो वेव है वो क्या बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या बताता है, वेंट्रिकुलर, एनीबॉडी, Depolarization. री री रीपोलराइजेशन, करेक्ट, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, कौन सा एकदम सही बताया गया है, तो कौन सा सही बताया, क्यूआरएस Third one. इज, यस, वन कंप्लीट पल्स। अगर क्यूआरएस हो गया तो हम बोलेंगे वन कंप्लीट पल्स है, बाकी जो पहला दूसरा और चौथा तीनों गलत है। All three are wrong. Peak P and peak R together are systolic and diastolic blood pressure. ऐसा ऐसा नहीं है, टी वेव भी है, डायस्टोल में टी वेव भी आता है ना। फिर पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पीक पी में क्या हो रहा है, हम बोलेंगे दोनों एट्रिया है, ठीक है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तभी इनिशिएशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। और ओनली लिखा है लास्ट में, देखो ओनली, वो गलत है, लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली नहीं है वो, इट इज लेफ्ट एट्रियम एज वेल एज, कौन सा बोलो, Right atrium. हाँ, एज वेल एज राइट एट्रियम, यस। सो इसमें ऑप्शन 3 ही करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, और ज्यादा टाइम मत लो, फटाफट, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एज इट इज मैंने लिखा था। बोलो, एनीबॉडी कैन आंसर एग्जैक्टली करेक्ट। Second. हाँ, यस, सेकंड, बिकॉज देखो क्या है, कंपेयर टू ब्लड अवर लिम्फ हैज, ठीक है। तो इसमें अभी पहला क्या पकड़ा गया है, ब्लड के कंपैरिजन में हमारा लिम्फ, ऐसा बोला, ये दोनों का कंपैरिजन है, किसका किसका, ब्लड का और लिम्फ का, ठीक है, इनके कंपैरिजन में लिम्फ में क्या है ये पूछा गया। सी इंग्लिश मैटर करता है, ठीक है, पढ़ने में आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कंपेयर टू लिम्फ आवर ब्लड हैज, ऐसा होता सो आंसर इज 3, अगर वैसा होता तो, ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया है, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, ठीक है। जैसे कंपेयर टू चाइना इंडिया हैज, ठीक है, तो हम आंसर बोलेंगे ओके इंडिया हैज दिस 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 दिस, लेकिन कंपेयर टू इंडिया चाइना हैज, तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो वैसे कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, क्या है लिम्फ में ज्यादा, तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज है एंड नो आरबीसी, एज इट इज हमने देखा था, ठीक है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है और आरबीसी नहीं है, नो आरबीसी, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी इज अपोजिट अगर किया तो, सो आंसर इज 2, ठीक है, ये आंसर नहीं है, 3 नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन नाउ।
Yes, almost everybody got the right answer. So right answer is bolo Third. third, depolarization Third. of the atria. S, start of systole. तो नहीं है, एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं है, एंड है, एंड ऑफ सिस्टोल है। टी एंड ऑफ डायस्टोल है क्या? टी क्या है? इनिशिएशन है, दोनों है, चालू है, यानी डायस्टोल का एंड नहीं है, वो डायस्टोल चालू है अभी, और जॉइंट डायस्टोल चालू है। पी क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, दोनों एट्रिया डीपोलराइज हो रहे यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, सिस्टोल हो रहा है। एंड आर इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो रीपोलराइजेशन नहीं है, उस समय डीपोलराइजेशन है। सो आपको अभी कुछ स्टूडेंट्स को डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और ये वो पोलराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, जिस समय सपोज ये ऑर्गन है, ठीक है, ये स्किन है या कोई भी लेयर है आउटसाइड किसी सेल का वगैरह, इसके अंदर सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लक्स, यानी सोडियम क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है, ठीक है, सोडियम इज मूविंग इनसाइड। सो ऐसा ये जो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, यानी वो मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डीपोलराइज हो रही है, ठीक है। पहले पोलराइज थी वो मेम्ब्रेन, यानी चार्जेस जो थे उस मेम्ब्रेन के चार्ज, वो चार्ज में क्या था? अंदर वाले साइड में, ये जो सेल है इसके अंदर वाले साइड में निगेटिव चार्ज था और बाहर वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन सोडियम अंदर चला गया तो अंदर वाला चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया सेल के अंदर का, और बाहर का चार्ज हो गया निगेटिव, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो जब पोलराइजेशन था, पोलराइज स्टेट ये है, ठीक है, पोलराइज स्टेट। डीपोलराइज स्टेट क्या है? ये है। ये स्टेट क्यों हो गई डीपोलराइज स्टेट? क्योंकि सोडियम अंदर चला गया। तो पोलराइज स्टेट में क्या है? सोडियम इज आउटसाइड, सो दिस इज सेल, सोडियम इज आउटसाइड, ठीक है, दिस इज पोलराइज स्टेट, सोडियम के आयंस। लेकिन डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है? सोडियम अंदर चला जाता है, तो जो चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं? बाहर निगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है, दिस हैपेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है डीपोलराइजेशन, ओके। तो फर्स्ट पोलराइज स्टेट ये है जिसमें बाहर पॉजिटिव है और अंदर निगेटिव है, ये पोलराइज स्टेट है। लेकिन चेंज हो जाता है, वो सोडियम अंदर आ जाएगा तो इट बिकम्स डीपोलराइज स्टेट, ठीक है। और जब हार्ट के जो मसल्स है वो डीपोलराइज जब हो जाते हैं तो क्या होता है? इमीडिएटली दे विल कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते बोलो? कॉन्ट्रैक्ट करते। सो डीपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को दूसरा नाम हमने क्या दिया है? वी कॉल इट आल्सो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज Systole. Systole. सिस्टोल, यस। सो डीपोलराइजेशन मींस सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और रीपोलराइजेशन यानी क्या? रीपोलराइजेशन में क्या किया जाता है? ये जो सोडियम जो अंदर आया, इसी सोडियम को क्या करो? बाहर निकल, अभी बाहर जा, सोडियम को बाहर निकल दिया,